رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش کرتے ہیں آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائن۔ گلبرگہ شہر کے بڑے پور کالونی میں واقع ترکاری کی دکان میں اچانک سے ہوا شارٹ سرکٹ اور دکان میں رکھی سبزیاں اور سامان جل کر ہو گیا خاک۔ گلبرگہ شہر میں کاروباری افراد اور تاجروں نے اہم میٹنگ منعقد کرتے ہوئے گلبرگہ پولیس کمشنر ایس ڈی شرنپا IPS اور کلبرگی مہانگر پالیکا کمشنر بھوونیش پاٹل کے ساتھ اہم مدوں پر کیا بحث و مباحثہ۔ گلبرگہ شہر میں پھر سے سنسنی خیز چوری کی واردات پیش آئی۔ گلبرگہ شہر میں لگاتار کئی سارے اداروں اور تنظیموں نے ایک کے بعد ایک کیے احتجاجی مظاہرے۔ اوقاف اور مائنورٹی ویلفیئر منسٹر BZ ضمیر احمد خان نے بنگلور کے چامراج پیٹ کانسٹیٹوئنسی میں مفت مکانات کے سیل ڈیڈ ضرورت مندوں میں کیے تقسیم۔ NCP لیڈر بابا صدیقی مرڈر کی سازشیں اور پلاننگ کو رچے جانے کی دلچسپ داستان کا ہوگا آج خلاصہ۔ آج کی اچھی بات۔ ناظرین یاد رکھیں کہ اچھے الفاظ اور اچھے خیالات ہی ہماری زندگی میں خوبصورتیاں پیدا کرتے ہیں۔ ذہن نشین رہے کہ جس چہرے کے ساتھ ہم پیدا ہوئے اسے ہم نے نہیں چنا، مگر جس چہرے کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہی ہمارے لفظوں، خیالوں، خوابوں اور دعاؤں کا عکس ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ زندگی میں کسی کو بھی جان بوجھ کر تکلیف نہ پہنچائیں۔ نفرت کے سوداگر بننے کے بجائے محبت کے دیے جلائیں۔ خوش رہیں، مضبوط رہیں اور اچھی زندگی گزاریں۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ گلبرگہ شہر کے سیڑم روڈ پر واقع بڑے پور کالونی میں بلگنڈی پیٹرول پمپ سٹیشن کے سامنے ایک سبزی کی دکان میں اچانک سے آگ لگ گئی اور دکان میں رکھی ہوئی سبھی سبزیاں جل کر خاک ہو گئی۔ جی ناظرین، گلبرگہ شہر کے سیڑم روڈ پر قائم بڑے پور کالونی میں موجود بلگنڈی پیٹرول پمپ کے بالکل سامنے سبزی کی دکان میں اچانک سے شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے بری طرح سے آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے دکان کے ساتھ اندر رکھا ہوا سامان سبھی سبزیاں جل کر خاک ہو گئیں اور دکان کے مالک کو 1,10,000 روپے کا نقصان ہو گیا، کیونکہ 2 قیمتی آلات سمیت بڑی مقدار میں اس دکان میں رکھی گئی سبزیاں جل کر خاک ہو گئیں۔ یہ حادثہ شرنما جاگپا کی دکان میں پیش آیا۔ لہٰذا انہی حالات کے پیش نظر اس دکان کی مالکن نے بتایا، ساتھ ہی اس نقصان کی بھرپائی کے لیے حکومت سے عاجزانہ اپیل اور گزارش بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فیملی کو چلانے کے لیے اس دکان کی بھرپائی کرتے ہوئے مجھے پیسہ چاہیے، کیونکہ ایک بار پھر سبزیوں کی تجارت کے لیے میز، وزنی مشینز، کرسی، سبزیاں ذخیرہ جمع کرنے کے لیے پلاسٹکس کے ڈبے وغیرہ خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں حکومت سے اس دکان میں جلی ہوئی سبزیاں اور سامان کے جلنے کے چلتے کچھ پیسے معاوضے کے طور پر دینے کا مطالبہ کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شرنما نے ایک درخواست لیٹر پیش کیا اور MB نگر پولیس اسٹیشن میں اس کیس کو درج کیا گیا۔ گلبرگہ شہر میں کاروباری لوگ، دکانداروں اور تاجروں کی جانب سے ایک اہم بات چیت میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں گلبرگہ پولیس کمشنر SD شرنپا IPS اور کلبرگی مہانگر پالیکا کمشنر بھوونیش پاٹل نے شامل ہوتے ہوئے اہم کردار نبھایا۔ جی ناظرین، یہاں کے اعلیٰ حکام اور عہدیداروں کے ساتھ تاجروں اور کاروباری افراد نے اپنے مدوں کو بتانے اور بحث و مباحثہ کرنے کے لیے ایک میٹنگ منعقد کی۔ لہٰذا KKCCI کلیان کرناٹکا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی جانب سے تاجروں کی اس میٹنگ میں مین ہائی لائٹس اور اٹریکشن کے طور پر گلبرگہ پولیس کمشنر SD شرنپا IPS اور کلبرگی مہانگر پالیکا کمشنر بھوونیش پاٹل نے شرکت کرتے ہوئے اس مسئلے مسائل اور بات چیت میں حصہ لیا۔ دونوں نے مل کر کچھ حد تک یہاں کے تاجروں اور کاروباری لوگوں کو پیش آنے والے پریشانیاں اور مسئلوں کو حل کرنے کی پوری کوشش کی۔ لہٰذا یہاں اس پروگرام اور میٹنگ میں
KKCCI के सदर शशिकांता पाटिल, एजाजी सेक्रेटरी मंजुनाथ जेवर्गी, संदीप मिश्रा, KKCCI के साबिक सदर प्रशांता मांकारा, उमा कांता और बहुत से दूसरे लोग मौजूद दिखाई दिए। गुलबर्गा शहर के सड़कों पर बड़े ही कड़े और सख्त अंदाज में बकाया जात की अदायगी का मुतालबा करते हुए हॉस्टल वर्कर्स ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। जी नाजरीन, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट हॉस्टल एंड रेसिडेंशियल स्कूल आउट सर्विसिंग एम्प्लॉइज एसोसिएशन की क़ियादत में गुलबर्गा शहर के जगत सर्कल से DC ऑफिस तक एक बहुत बड़ी डिवीजनल सतह की रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ मुतालबात की तकमील करने की डिमांड की गई। जी हाँ, हॉस्टल में काम करने वाले मुलाजमीन के बकायाजात की अदायगी और सर्विस सिक्योरिटी की फराहमी के मुतालबात के साथ रियासती सदर भीमा शेट्टी, काशीनाथ बंडी और परशुराम की क़ियादत में जगत सर्कल से DC ऑफिस तक एक बड़ी रैली निकालते हुए नारे लगाते हुए ये एहतजाजी काफिला इलाकाई कमिश्नर ऑफिस पहुंचा और वहां पर उनके मुतालबात से भरा हुआ एक मेमोरेंडम लेटर वहां पर दिया गया और यहां पर शिकायत करते हुए बताया गया कि सरकारी हॉस्टल्स में काम करने वाले आउट सर्विस मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें नहीं दी जा रही है, जिससे मुलाजमीन शदीद मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं, जैसे कि महकमे समाजी बहबूद में 2 से 3 महीने की तनख्वाह, पसमानदा तबकात की बहबूद के महकमे में 7 से 8 महीने की तनख्वाहें और महकमे अक़लियती बहबूद में 1 से 2 महीने की तनख्वाहें नहीं दी गईं। लिहाजा इन्हीं तमाम बकायाजात की फौरी अदायगी, सर्विस सिक्योरिटी की फराहमी, कम अज़ कम तनख्वाहें 31,000 रुपये करना, स्टाफ में कमी का हुक्म वापस लेना, मुस्तकिल मुलाजमीन की जगह सिर्फ मुस्तकिल मुलाजमीन के तबादले समेत कई सारे मुख्तलिफ मुतालबात यहाँ पर किए गए। गुलबर्गा शहर में फिर से सनसनीखेज चोरी का एक और वाकया पेश आया। जी हां, गुलबर्गा शहर के पुराने जेवर्गी रोड पर वाक़े नवजीवन नगर में एक बंद मकान का ताला तोड़कर कई सारे सोने के जेवरात और नकद रकम को चुरा लिया गया। बता दिया जाए कि नामदेव जयंता नामी शख्स के बंद घर का ताला तोड़कर घर में मौजूद 60,000 मालियत का 10 ग्राम सोने का हार, 10 ग्राम की कान की बालियां, 5 ग्राम का बोरमाड़ा, 2 ग्राम की अंगूठियां, सोने की चेन और 5 तोले चांदी की चेन के साथ जाफरान का डब्बा, पैरों की चांदी की पायल और 3,32,000 रुपये नकद को चोरों ने चुराया और फरार हो गए। लिहाजा इस चोरी केस को अब थाना बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, जिसकी तफ्तीश अभी जारी है। गुलबर्गा शहर में दाखिली रिजर्वेशन के दर्जा बंदी के जल्द निफाज का मुतालबा करते हुए मड़ीगा समाज तंजीम ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए मार्च किया। जी हां, मड़ीगा समाज तंजीम ने अंदरूनी रिजर्वेशन की दर्जा बंदी लागू करने के लिए महकमे में सरकारी तकर्रुरात को रोकने के मुतालबे के साथ सड़कों पर एहतजाजी मार्च किया। गुलबर्गा शहर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सर्कल से होते हुए कलेक्टर ऑफिस तक एक बहुत बड़ा एहतजाजी जुलूस निकाला गया और यहां पर इस तंजीम के अहम जिम्मेदार और मुजाहिरीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही ऑर्डिनेंस के जरिए अंदरूनी रिजर्वेशन नाफिज करने और मुख्तलिफ महकमों की तरफ से सरकारी तकर्रुरात रोककर मड़ीगा समाज के साथ इंसाफ किया जाए। लिहाजा यहाँ इस मौके पर कम्युनिटी लीडरान जैसे कि परमेश्वर खन्नापुरा, श्याम नटीकर, गोपाल कटमेनी, रमेश वाड़ीकर, मल्लिकार्जुन, विजय कुमार अड़की, चंद्र तामिनी, राजू कटमेनी और सचिन कटमेनी के साथ दीगर लोग ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। इसी के साथ ही इस एहतजाज के बाद जिला कलेक्टर के तवस्सुत और ऑफिस से वज़ीर आला को एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि गुलबर्गा शहर में AIDSO की जानिब से भी एक प्रोटेस्ट किया गया था, जिसमें यहाँ के तलबा व तालिबात की कमेटी ने पुरजोश अंदाज से हिस्सा लिया और कड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया था। लिहाजा UBDT स्टूडेंट स्ट्रगल कमेटी के तलबा व तालिबात, रियासती वर्किंग कमेटी के मेंबर्स वेंकटेश, शशिकला, देवदुर्ग और कई सारे लीडर्स और तलबा व तालिबात को इस एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान गिरफ्तार किया गया। इस बात को लेकर AIDSO लीडर्स ने हिरासत में लिए गए अफराद को जल्द से जल्द रिहा करने का मुतालबा किया। जैसे कि राब्ता न्यूज के नाजरीन को परसों बताया गया था कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने बल्लारी जिले के संडूर गांव के जरूरतमंद लोगों में हजारों मकानात की तामीर करते हुए उन्हें घरों को तकसीम करने का शानदार कारनामा अंजाम दिया था। लिहाजा अब उसके बाद बता दिया जाए कि औकाफ और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर BZ जमीर अहमद खान ने ऐसा ही बड़ा ही शानदार कारनामा बेंगलोर शहर के चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में वाक़े वेंकट रामनगर स्लम के 358
18 जरूरतमंद फैमिलीज में मुफ्त घरों को तकसीम करने का एक और बेहतरीन कारनामा कर दिखाया। जी हां, जनाब बीजेड जमीर अहमद खान ने चामराजनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में वाक़ वेंकट राम नगर स्लम के 318 खानदानों में घरों के सेल डीड को तकसीम किया। लिहाजा यहां इस घरों के सेल डीड के तकसीमी प्रोग्राम में बेंगलोर शहर की नामचीन सियासी समाजी शख्सियात मौजूद दिखाई दी। ऐसे के स्लम बोर्ड कमिश्नर श्री अशोक, अभियंतारा सुधीर, टेक्निकल एडवाइजर बाला राजू, केएमडीसी चेयरमैन जनाब अल्ताफ खान, चामराज कांग्रेस लीडर्स चंद्रशेखर, कोकिला चंद्रशेखर, राजू, विनायक, नारायण स्वामी, श्री गजेंद्र के साथ और भी दीगर लोग यहां मौजूद दिखाई दिए। राब्ता न्यूज के नाजरीन को बता दें कि हाल ही में मुंबई एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के मर्डर के चर्चे और खबरें हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ फैल रही हैं, जिसकी नाजुकी को देखते हुए हम अपने नाजरीन को इस बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के पीछे की दिलचस्प दास्तान को सुनाने जा रहे हैं, जिसने पूरे मुंबई शहर को हिलाकर रख दिया। बाबा सिद्दीकी वो मशहूर नाम जो कि अपने कामों और बेहतरीन अल्फाजों के साथ किए गए बयानात और मुंबई में बॉलीवुड सुपरस्टार्स के साथ इफ्तार पार्टी करने के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। मुंबई शहर का वो मारूफ नाम जिसे कोई भी इंट्रोडक्शन या तारुफ की जरूरत नहीं है, वही बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का खुलासा आज किया जाता है कि मुंबई में एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल की साजिश का आगाज उस वक्त हुआ जब 14 जुलाई के दिन मुंबई में वाक़े माकोगा कोर्ट में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने 1736 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 14 अप्रैल को बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के शानदार घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर शूटआउट के चलते हमले के बारे में तफसीली मालूमात पेश की गई थी और इस चार्जशीट में मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ कुल मिलाकर 9 लोगों को मुल्जिम के तौर पर पेश किया गया था। और इस चार्जशीट में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने बड़े बड़े अल्फाजों में एक बड़ी अहम लाइन भी लिखी थी कि सलमान खान को धमकियां देते हुए गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमला करना तो बस एक बहाना था। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपने इस दबदबे और डर के साथ पूरे मुंबई पर राज करना चाहता है और वो मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपना कंट्रोल भी कायम करना चाहता है। लिहाजा बाबा सिद्दीकी के मर्डर के चलते 2 सवालात बड़े ही शदीद अंदाज से सभी के जहन में उठने लगते हैं कि क्या इस बाबा सिद्दीकी के मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, और अगर वही इस मर्डर का मेन मुल्जिम और अक्यूज्ड है तो फिर क्यों बाबा सिद्दीकी को ही उसने अपना शिकार बनाया। लिहाजा 48 घंटों की कड़ी तफ्तीश और छानबीन के बाद पकड़े गए और फरार मुल्जिमान को लेकर मुंबई पुलिस ने कुछ ऐसी कड़ियां जोड़ी जो कि इशारा करती हैं कि इस मर्डर के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ है। और मुंबई पुलिस को ऐसा क्यों लगता है, इसके पीछे भी एक दिलचस्प और असल कहानी छुपी हुई है। बता दिया जाए कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर होने के फौरी बाद मुंबई पुलिस ने इस केस में छानबीन करके कुल मिलाकर 6 लोगों को इस कत्ल केस में मुलविस पाया और इन 6 मुल्जिमान के नाम गुरमैल सिंह, धर्मराज कश्यप, शिव कुमार, गौतम, जीशान अख्तर, शुभम लोनकर और परवीन लोनकर बताए गए और इनमें से 3 मुल्जिमान गुरमैल सिंह, धर्मराज कश्यप और परवीन लोनकर को पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि बकिया 3 मुल्जिमान अभी भी फरार बताए गए। लिहाजा इन गिरफ्तार 3 मुल्जिमान से जब पूछताछ की गई तो इस मर्डर केस की गुत्थियां सुलझती हुई दिखाई दी। जी हां, मुंबई पुलिस ने यहां पर बताया कि पंजाब जलंधर के शकर गांव का रहने वाला जीशान अख्तर कत्ल और लूटपाट केस में पटियाला की जेल में कैद था और उसका एक अपना ही अलग गैंग था और वो साल 2022 से लेकर जून 2024 तक पटियाला की जेल में बंद था। और इस पटियाला जेल में उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर से हुई और साथ ही उसकी मुलाकात गुरमैल सिंह से भी हुई, जो कि अपने बड़े भाई के कत्ल के इल्जाम में पटियाला जेल में अपनी सजा काट रहा था। लिहाजा जून 2024 को जीशान अख्तर पटियाला जेल से रिहा हो गया और इसी बीच गुरमैल सिंह को भी जमानत मिल गई और वो भी जेल से बाहर निकल आया। फिर जीशान ने गुरमैल के घर केथाल जाकर उससे मुलाकात की और फिर वो वहां से मुंबई के लिए रवाना हो गया। लिहाजा मुंबई पुलिस ने यहां पर बताया कि पटियाला जेल में ही मुलाकात के दौरान लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर गुरमैल सिंह और जीशान अख्तर के बीच बातचीत हुई और उन्होंने टारगेट को बताते हुए कत्ल की प्लानिंग पटियाला जेल में ही की।
लिहाजा यहाँ पर उनका टारगेट कोई और नहीं बल्कि बाबा सिद्दीकी ही था। लिहाजा ये तमाम प्लानिंग के बाद ज़ीशान को अब शूटर्स की ज़रूरत थी और उसने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शूटर्स ऐसे होने चाहिए जिनका कोई बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो और ना ही वो कोई वांटेड लिस्ट में शामिल हो। इसी के तहत उसने शूटर्स की तलाश शुरू कर दी। लिहाजा फिर ज़ीशान पुणे पहुंचा और वहां उसने शोभम लोनकर से मुलाकात की, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए पहले से ही काम किया करता था, जिसकी पुणे में गायरी, तबेला और उसके साथ लगकर कबाड़ का गोदाम है और उस गोदाम में यूपी के बहराइच से ताल्लुक रखने वाले धर्मराज कश्यप और शिव कुमार काम किया करते थे। लिहाजा इन दोनों बंदों को पैसों का लालच देकर इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया। अब ज़ीशान के पास 3 शूटर्स तैयार थे, गुरमैल सिंह, शिव कुमार और धर्मराज कश्यप। फिर इन तीनों को मुंबई भेजा गया, जहां पर उनके रहने के लिए 14,000 रुपये देकर मुंबई के कुर्ला एरिया में किराए का फ्लैट लिया गया, जिसका इंतजाम ज़ीशान अख्तर ने ही किया। बता दिया जाए कि ये फ्लैट 2 सितंबर को किराए पर लिया गया था। लिहाजा मुंबई पहुंचते ही ये 3 शूटर्स का एक ही मकसद था कि बांद्रा में मौजूद बाबा सिद्दीकी पर कड़ी नजर रखते हुए, उनके हर मोमेंट पर पल पल की खबर रखते हुए उनके आने जाने की जगहों का मुआयना करना, साथ ही ये पता लगाना कि वो कब और कहां जाते हैं, घर पर कब होते हैं और किससे मिलते हैं, वगैरह वगैरह। और बता दें कि बाबा सिद्दीकी पर नजर रखने के लिए ये 3 शूटर्स ऑटो से बांद्रा आया जाया करते थे। फिर आखिरकार इतने दिनों की कड़ी नजर और छानबीन करने के बाद बाबा सिद्दीकी की हर मोमेंट पर नजर रखकर उनके शेड्यूल का पता लगाने के बाद दशहरे के दिन को उनका कत्ल करने के लिए चुना गया। क्योंकि दशहरे के दिन ही बाबा सिद्दीकी साहब मूर्ति विसर्जन और गरबा प्रोग्राम में शरीक होने के लिए बाहर निकलने वाले थे। लिहाजा गरबा प्रोग्राम में शिरकत करने के बाद वो अपने बेटे के ऑफिस पहुंचे ही थे और ये तीनों लगातार बाबा सिद्दीकी का पीछा कर रहे थे और तीनों के पास पिस्तौल मौजूद थी। लेकिन अचानक से बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग सिर्फ गुरमैल सिंह ने शुरू की और उसने ताबड़तोड़ 6 गोलियां बाबा सिद्दीकी पर चलाई, जिसमें से 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को जाकर लगी और बाबा सिद्दीकी ने अपनी आखिरी सांसें ली। नाजरीन, कल के न्यूज बुलेटिन में पूछे गए सवालात के सही जवाब ये हैं। बच्चों का सबसे पहला मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम कैमरून मुल्क में शुरू किया गया। दूसरा सही जवाब, हिंदुस्तान में वाक़े जयपुर शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। तीसरा सही जवाब, इंदिरा गांधी पहली हिंदुस्तानी खातून है जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। कल के बुलेटिन में पूछे गए पहले सवाल का ज्यादातर अवाम ने गलत जवाब दिया, जबकि सिर्फ एक मोहतरमा ने पूछे गए तीनों सवाल का सही जवाब दिया, जिनका नाम है आयशा डॉटर ऑफ मोहम्मद कदीर, मोहतरमा आयशा बिन्त मोहम्मद कदीर। गेस द करेक्ट आंसर एंड विल अनाउंस योर नेम सेगमेंट के आज के 3 सवालात ये हैं। पहला सवाल, हरी मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शंस है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। दूसरा सवाल, ओवल क्रिकेट ग्राउंड किस मुल्क में कायम है? ऑप्शंस है इटली, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या लंदन। तीसरा सवाल, किस शहर को मस्जिदों का शहर कहा जाता है? ऑप्शंस है बगदाद, मदीना, इस्तांबुल या ढाका। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।